How are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our 8th chapter of class 2nd, which is about the sun, light and shadow. Okay, so let's begin our chapter. See, students, first of all, they have given some pictures to us and they have asked to us that look at the pictures and see what is happening. Can these happen only in the daytime when the sun is up? Put a tick for the activities which can only happen during the day. So basically यहाँ पे हमें कुछ pictures given है जिनमें कुछ लोग कुछ activities को कर रहे हैं. हमें इन activities को identify करना है और उन activities के आगे we have to tick the correct mark where those activities can happen only in the daytime. Daytime means what? जब sun आपका rise up हो जाता है उसके बाद आपका day time शुरू होता है. So उस day time में ही सिर्फ होने वाली activities के आगे हमें tick mark करना है. So first of all you can see in this picture, first picture, that the students are there in the class. So students class में बैठे हैं, they are studying. That means what? ये कब होता है? ये at night does not happen. ये day time में हम लोग morning में school जाते हैं when the sun is up. That means this is the activity which happens only during the daytime. So we are going to mark it tick. Now again this you can see यहाँ पे क्या है कि द गर्ल इज वाटरिंग द प्लांट्स. ओके, वो क्या कर रही है? प्लांट्स को पानी दे रही है. सो दिस इज द एक्टिविटी जो आपका मॉर्निंग इवनिंग कभी भी हो सकता है. ओके, सो दिस इज not a activity which basically happens during the daytime only, okay, but it might happen in the daytime also. So we are going to mark it correct only. Now again over here this boy is reading the book. So book reading का कोई ऐसा activity नहीं है जो सिर्फ day time पे होती है. हम night time पे भी books को read करते हैं. Okay, so we are not going to mark it tick. Now next picture is what? See, आप देख सकते हो this girl is doing what? She is observing the moon, the stars, and the moon and the stars appear during the night time only, not in the daytime. That means again this is not an activity which happens only in the daytime. Now next here you can see what the wind is blowing. So wind जहाँ blow कर रही है वहाँ पे we can see that it does not happen only in the daytime. ये सिर्फ daytime में होने वाली activity नहीं है, ये आपकी night time में भी हो सकती है. Again in this picture you can see the plane is what? Flying up. So plane का fly करने का time सिर्फ day time पे नहीं होता है, night time में भी होता है. So again ये activity ऐसी नहीं है जिसे हम tick mark करेंगे. Now over here the children are playing. ओके, सो बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं. तो हाँ, ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो सिर्फ डे टाइम पे होती है. सो वी विल मार्क इट टिक. नाउ हियर व्हाट? द hen along with this chick they are eating the grains. ओके, क्या कर रहे हैं? ग्रेन्स खा रहे हैं. ठीक है, सो दैट मीन्स व्हाट? कि ये खाना खा रहे हैं. तो ये ऐसा एक्टिविटी नहीं है जो डे टाइम पे होती है, ये नाइट टाइम पे भी हो सकती है. सो वी आर नॉट गोइंग टू मार्क इट टिक. ओके, सो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट. See, now we are having the topic the sun and its usefulness. See, the sun brings a new day with it every day, and with the day it brings many gifts and wonders. Let us know more about the sun, sunlight and shadow. We all have seen the sun shining brightly in the sky. It is a big ball of fire. It is very far from the earth and that is why it appears very small. So sun क्या करता है? जब sun morning में आपका rise होता है from the east direction, it brings a new day for us. क्या? एक नए दिन की शुरुआत होती है when the sun rises up every day, है ना? और फिर जब आपका डे स्टार्ट होता है so बहुत सारे wonders and gifts भी उसके साथ आते हैं. Now what we are going to do is we are going to know more about these concepts like sun, sunlight and shadow in this chapter. We have seen the sun shining brightly in the sky during the daytime, है ना? डे टाइम पे हम देखते हैं जो हमारा सन है वो बहुत ब्राइटली शाइन करता है स्काई में. सन क्या है? एक बहुत बड़ी सी बॉल है ऑफ फायर. इट इज़ अ बिग बॉल ऑफ फायर. ये बहुत ही हॉट होता है. ये हमें लाइट, हीट, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करता है. और क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है सन का, इट इज़ वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ, दैट इज़ वाई इट अपीयर्स वेरी स्मॉल. अदरवाइज ये बहुत बड़ी बॉल है फायर की.
नाउ हाउ इज द सन यूजफुल टू अस? इट इज़ यूजफुल टू अस इन मेनी वेज. बहुत सारे तरीके से सन हमारे लिए यूजफुल है. जैसे कि वी गेट लाइट फ्रॉम द सन, वी नीड सनलाइट टू वर्क एंड प्ले. हमें जो लाइट मिलती है वो किससे मिलती है? वो हमें सन से मिलती है ना. और हम सभी को लाइट की ज़रूरत होती है टू वर्क एंड टू प्ले. नेक्स्ट, सन मेक्स द डे ब्राइट एंड वार्म. सन क्या करता है? दिन को ब्राइट एंड वार्म बनाता है. इट गिव्स अस हीट प्रोवाइड करता है. दैट इज़ वाई वी लव टू सिट इन द सन इन विंटर्स. और इसीलिए विंटर्स में हमें सनलाइट में बैठना पसंद होता है. नाउ नेक्स्ट, ग्रीन प्लांट्स मेक द फूड इन सनलाइट. ग्रीन प्लांट्स भी अपना जो खाना प्रिपेयर करते हैं वो क्या सनलाइट के प्रेजेंस में ही करते हैं. हीट ऑफ द सन ड्राइज आवर क्लोथ्स. सन की हीट से हमारे जो क्लोथ्स है, कपड़े हैं, वो भी ड्राई होते हैं. फ्रूट्स राइपन विद दिस हीट. जो फ्रूट्स है वो भी आपके रॉ से राइप हो जाते हैं, पकने लगते हैं सन की हीट से ही. इट इज़ ड्यू टू द हीट ऑफ द सन दैट वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर. और जो हमारी वाटर बॉडीज़ है लाइक रिवर, ओशन, सीज, लेक्स एंड पॉन्ड्स, वहाँ जो पानी है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ द सन लाइट, होती सन की हीट की वजह से. सो वी गो टू स्लीप इन द नाइट व्हेन इट बिकम्स डार्क. द अर्थ मूव्स अराउंड द सन अपीयर्स टू राइज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. फिर उसके बाद रात में व्हेन इट बिकम्स डार्क, अंधेरा हो जाता है तो हम सो जाते हैं, राइट. जो अर्थ है, अर्थ क्या करता है? सन के अराउंड मूव करता है ना. और फिर उसी अकॉर्डिंग हमें जो सन है वो मॉर्निंग में हमें राइज होता हुआ दिखता है फ्रॉम द ईस्ट डायरेक्शन एंड इट सेट्स इन द वेस्ट डायरेक्शन इन द evening. Okay, now can plants make food at night? क्या plants अपना खाना नाइट टाइम पे बना सकते हैं? Yes or no? So the answer is no, because sun requires sunlight. Sorry, the plants required sunlight. Plants को sunlight की requirement होती है जिसके presence में ही वो अपना खाना prepare कर सकते हैं. और जो sun rise करता है वो डे टाइम पे करता है, इसीलिए plants नाइट टाइम पे अपना खाना prepare नहीं कर सकते हैं. Now, light and shadow. Light travels in a straight line. Some objects allow light to pass through them. When an object comes in the way of light, through which light cannot pass, a shadow is formed. When a body comes in the path of light, our shadow is formed on the opposite side of the light. When we walk or sit under the skin, our shadow is formed on the ग्राउंड. सो लाइट क्या है? लाइट वी हैव स्टडीड. अगर हम सन की लाइट के बारे में बात करें तो सन क्या प्रोड्यूस करता है? लाइट प्रोड्यूस करता है. और जो वो लाइट है वो कैसे ट्रैवल करती है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आगे की तरफ ट्रैवल करती है. अब कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अपने थ्रू लाइट को पास होने नहीं देते हैं. ओके, वो क्या करते हैं? लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं. दे डू नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम. सो दैट मीन्स वॉट कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपने थ्रू लाइट को पास होने नहीं देते हैं और वो लाइट के डायरेक्शन में, जहाँ लाइट आगे मूव कर रही थी स्ट्रेट लाइन में, उनके पाथ में अगर बीच में आ जाते हैं, और क्योंकि लाइट तो उनके थ्रू पास नहीं हो सकती है, तो वहाँ पे फिर शेडो का फॉर्मेशन होता है. दे हैव टोल्ड अस कि इफ़ द सनलाइट इज फॉलिंग, सनलाइट आगे ट्रैवल कर रही है, फॉल कर रही है, और अगर हमारी बॉडी उस सनलाइट के पाथ में पीछे आ जाएगी तो हमारी बॉडी भी लाइट को पास होने नहीं देती है, जिसकी वजह से हम क्या कर देते हैं? सनलाइट का जो पाथ है उसको बीच में ब्लॉक कर देते हैं, और फिर हमें हमारी खुद की शेडो बनती हुई दिखती है ऑपोजिट डायरेक्शन में. लाइट के ट्रैवल करने की ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें अपनी शेडो फॉर्म, मतलब शेडो बनती हुई दिखती है. जब हम सन के अंडर बैठते हैं या वॉक करते हैं, सो यूजुअली आपने देखा होगा कि आपकी जो खुद की शेडो है वो बनती है कहाँ पे? ग्राउंड पर. ओके, नाउ शेडो चेंजेस लेंथ एंड डायरेक्शन. शेडो क्या करती है? लेंथ और डायरेक्शन को चेंज करती है. सी कैसे? ये है मॉर्निंग के टाइम पे शेडो, ये है आफ्टरनून के टाइम पे शेडो, एंड दिस इज द शेडो विच इज देयर इन द इवनिंग टाइम. सो एक्चुअली यहाँ पे आप जो ऑब्जर्व करेंगे कि ये एक पूरे दिन में 3 डिफरेंट टाइम्स में बनने वाली शेडो है, और तीनों की जो लेंथ है वो डिफरेंट है एट डिफरेंट टाइम. सी, द शेडो इज लॉन्ग इन द मॉर्निंग, इट बिकम शॉर्ट इन द नून एंड लॉन्ग अगेन इन द इवनिंग. द लेंथ ऑफ द शेडो चेंजेस एज द अर्थ मूव्स. द डायरेक्शन ऑफ द शेडो ऑल्सो चेंजेस फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग. मॉर्निंग के टाइम पे जो शेडो बनेगी किसी ऑब्जेक्ट की वो काफ़ी लॉन्ग होती है. इवनिंग टाइम पे, और वी कैन से इन द नून टाइम, वो थोड़ी शॉर्ट हो जाती है,
और फिर इवनिंग टाइम पे वो फिर से लॉन्ग हो जाती है। सो इस तरीके से क्या हो रही है कि जो शेडो की लेंथ है वो चेंज होते जा रही है, जिस तरीके से आपका अर्थ मूव कर रहा है, जो सन की डायरेक्शन है वो हमें चेंज होती हुई दिख रही है। तो उसके साथ साथ जो डायरेक्शन है शेडो की वो भी चेंज होती है मॉर्निंग से इवनिंग तक। मॉर्निंग में ये जो शेडो थी वो कुछ इधर की तरफ बन रही थी, इवनिंग में आफ्टरनून में बिल्कुल स्ट्रेट सामने बनी है और इवनिंग में फिर उधर की तरफ शिफ्ट हो गई। तो डायरेक्शन और लेंथ दोनों चेंज होती हैं आपकी फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग ऑफ द शेडो। Shadows are formed only if there is light. At night, shadows are formed by the light of the moon, bulb और कैंडल। शेडो सब तभी बनती हैं जहाँ लाइट का प्रेजेंस होता है। तो मॉर्निंग में तो सनलाइट के थ्रू हमें लाइट मिल जाती है, लेकिन जो इवनिंग टाइम है या नाइट टाइम है तब शेडोज़ किसके थ्रू बनती हैं? मून, बल्ब, ये कैंडल की जो लाइट्स होती हैं इनके थ्रू शेडो का फॉर्मेशन होता है। नाउ so we have completed the chapter. We have discussed about the sun and the light and also about the shadow formation. I hope the chapter was very clear to you. We'll meet you very soon in the new chapter. Till then, take care and thank you everyone.